Political row has erupted over aviation and chaos in flights. Jyotiraditya Scindia has hit out at Shashi Tharoor. He has tweeted, "It is for someone who is lost in his esoteric world of thesaurus that data mining of selective press articles from the internet qualifies as research." Arzu Seth is joining us for more details on this story. Arzu, take us through this war of words that has erupted between Tharoor and Scindia on the aviation sector. Well, yes, there seems to be a war of words between Shashi Tharoor of Congress and the Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, where Shashi Tharoor have raised several questions related to civil aviation, where he mentioned that the Delhi airport has been in chaos recently. The young professional wanting to go home for Makar Sankranti, the army officer excited to visit his ancestral village for Lori, the anxious son trying to get home to take care of an unwell parent. Thousands of people lives and schedule have been disrupted by a regular, predictable, foggy winter day. It's a Modi government-made disaster and a result of the Ministry of Civil Aviation's neglect and the incompetence and several other things that Shashi Tharoor have raised. In fact, he talked about 2008 at a cost of rupees 100 crore. Delhi IGI airport got a brand new CAT 3rd B compliant runway. CAT 3rd B is a type of instrument landing system allowing pilots to land even when there is a fog or below visibility of 50 meters. In total, Delhi has 4 runways, 2 of which are CAT 3rd B compliant. In all its wisdom, the Modi government began maintenance work on one of the 2 CAT 3rd B runway in September 2023. So answering to all those questions that Shashi Tharoor has raised, Aviation Minister in fact have answered those questions, saying that the Congress IT cell that might help tackle their lack of depth in understanding of technical sector like civil aviation. He also mentioned that the runway maintenance work is a critical safety element for aviation operation, and any compromise with runway condition directly, jeopardize passenger safety. And as a result, the maintenance work was taken on top priority to be completed by 15th of December before the onset of the fog session. However, due to the pollution incidents and the enforcement of GRAP 4 in Delhi, got delayed, and the work got delayed and resulting in a delay of 1 month in its completion. The revamp is getting operational this week. So there has been an answer of all those questions, all those complaints that the Shashi Tharoor has raised on the social media platform X. Yes. Anshu Awasthi, leader of the Congress, also joins us now on the broadcast. Anshu Awasthi, a clear rebuttal by Jyotiraditya Scindia. He has said it seems that the person making these charges is lost in his esoteric world of thesaurus, that he's indulging in data mining. खैर वेदर का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर तरफ बीजेपी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं इसके पीछे। क्योंकि कोई भी आदमी फ्लाइट से जाना चाहता है, वो इसीलिए जाता है कि जल्दी पहुंचे। अब डिले भी है, किराया भी महंगा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब हवाई चप्पल वाला आदमी चलेगा। अरे लोगों के पास हवाई चप्पल ही नहीं मगर ये किराए की समस्या तो है नहीं, ये कोहरे की समस्या है अंशु अवस्थी जी। इस वजह से सिंधिया साहब कह रहे हैं कि आप तथ्य दें, रिसर्च दें। थरूर साहब क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इंटरनेट से तथ्य ला रहे हैं साहब? देखिए, प्रॉब्लम तो जो है क्रिटिसाइज होने वाली बात है ना, फ्रस्ट्रेशन की बात है। तो उसके पीछे बहुत सी बातें हैं। जो 3000 का किराया था, 20,000 का टिकट ले रहा है, उसके बाद भी फ्लाइट आप नहीं चला पा रहे हो, आपके पास कोई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रही, सिर्फ बेच रही है। तो सिंधिया जी बेचारे, उनके ऊपर तो मुझे बड़ा तरस आता है कि उनके पास न एक जहाज है, न मिनिस्ट्री में कुछ है। वो तो एक तरीके से बेचारे, उनकी बड़ी दयनीय दशा है। तो खैर उनको छोड़िए, जो दिन पर दिन प्राइवेट कंपनियां किराया बढ़ा रही, उसके बाद गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है। आज इसी वजह से वेदर प्रॉब्लम में आपके पास ट्रैफिक लोड बढ़ जा रहा है, आपके पास कोई ऑप्शनल अरेंजमेंट नहीं है।
तो लोग इसी वजह से नाराज हो रहे हैं, किराया भी ले रहे हैं, टाइम से पहुंचा भी नहीं रहे हैं। और सिंधिया जी को काम तो करना था डिपार्टमेंट में, अब वो ट्विटर पे लगे हुए, तो आप समझ लीजिए विभाग की हालत क्या होगी, इसे समझ सकते हैं आप। नहीं, मगर अंशु अवस्थी जी, उनका कहना है कि ये जो आरोप हैं वो गलत हैं। सरकार जो है वो काम कर रही है, डिलेज को मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास हो रहा है, और मौसम का हाल अगर ऐसा है तो वो क्या करें? हाँ, वही तो आपसे मैं भी कह रहा हूँ कि उनके पास एक भी काम नहीं, क्योंकि जहाज है नहीं, विभाग में कुछ है नहीं, सब अडानी को बेच दिया, जहाज प्राइवेट है, एयरपोर्ट अडानी के पास है, तो वो सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। उनको यही बताया गया है, और जितना बोलने को बताया गया उतने बोल रहे हैं वो कि सरकार काम कर रही। काम क्या काम करी पूछ लो अभी, तो सरकार एयरपोर्ट बेच रही है, अपनी जो एयर इंडिया थी उसको बेच दिया, ये काम कर रही है। इस काम से देश के आम आदमी को फायदा हो नहीं रहा। एयर इंडिया में कम से कम लोग सरकारी नौकरी करते थे, उससे भी आपने निकाल दिया। तो ये जो काम ही, इन्हीं कामों से तो दिक्कत हो रही है। जो प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत से जो अवस्थी जी जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह भी इस वक्त जुड़ गई हमारे संग, बीजेपी के नेता है। अनिला सिंह, आप सुन रहे हैं अंशु अवस्थी जी क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि उनको सिंधिया साहब पे तरस आ रहा है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। वह ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सब कुछ बेच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, इस वजह से एविएशन सेक्टर में दुर्दशा है। मेरी सबको राम राम। और कांग्रेस पार्टी तो ना बताए, जो 10 साल से बाहर बैठी हुई है, कि सरकारें कैसी चलती हैं। पूरे विश्व में अगर नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता उभर कर आए हैं, तो ऐसे ही तो नहीं आ गए ना। नाम के आधार पर, व्यवहार के आधार पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और पूरा भारतवर्ष जो है अर्थव्यवस्था में भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 10वें से जब ये लोग गए थे तो 10वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे, और बहुत जल्द हम 3रे स्थान पर आ जाएंगे। और जीडीपी में हम जो है 2रे स्थान पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात ले लीजिए, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, एम्स की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, हर जगह जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा तो कारण ये हो सकता है बहुत पुरानी और बहुत बीमार हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। शायद आंखों से दिखना और कानों से सुनना कम हो गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.